All right, bete. So we are going to start with the revision of the chapter Social Responsibilities of Business. What are the learning objectives of this chapter? Bete, after studying this chapter, you will come to know about the concept of social responsibility. What exactly is social responsibility? Then we will be discussing the need for the social responsibility. That is why the business firms should be socially responsible. Okay, why they should fulfill their social responsibility. Then you will also come to know the social responsibility of a firm towards different interest groups. Okay, there are many stakeholders in one business. Stakeholders means those who are having interest in the business. It could be employees of the business, it could be investors of the business, it could be consumers, right? And it could be government also. So what is the social responsibility of the business firm towards different interest group, right? After that, we will be analyzing the relationship between business and environmental pollution. As we are facing the problem of environmental pollution, it has increased multiple times. The AQI, Air Quality Index of New Delhi, has been shooting up to 1100 during these festival days. That of Jalandhar was 400 plus, and the air quality index should always be below 150 if you want to have a clean, good air to breathe in. But this problem is increasing multiple fold times, especially in India. All over the world, the problem is there, but especially in India, it is increasing. So we will be analyzing what is the relationship between a business and the environmental pollution. ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या मतलब है? व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशंस. हर बिजनेस फर्म की ऑब्लिगेशन है, जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे एक्शंस परफॉर्म करे, to perform those actions and take those decisions. कि वो ऐसे काम करे, ऐसी decisions ले which are desirable in terms of objectives and values of the society. ठीक है? Which are desirable in terms of values of or interest of society. So let us take the example of two business firms, A and B. Both are producing goods, okay? And A firm is providing you with adulterated good, मिलावटी goods दे रही है, ठीक है? और लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही है, हाई प्राइस पे दे रही है, डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट कर रही है. यू अंडरस्टैंड अबाउट डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट? मतलब जो ये क्लेम करती है कि हमारे प्रोडक्ट से ऐसा होता है, वो होता नहीं है. ठीक है? जैसे कॉम्प्लान की एड आती है कि कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे की ग्रोथ ज्यादा होती है. सो इफ the height of the child is not increasing even after having it for a long period of time, which means it is a deceptive advertisement. It is making false claims regarding its products. ठीक है? So और environment को pollute कर रही है. So बेटे इसके जो actions जो ये perform कर रही है या जो ये decisions ले रही है, क्या ये society के values के साथ जाते हैं? क्या ये सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को रिलेट करते हैं? नहीं. इसका मतलब दिस फर्म इज बिहेविंग इन अ सोशली irresponsible manner. Whereas if we talk about firm B, it is providing you a better quality product at low price. ठीक है? No unadulterated goods,
अनएडल्ट्रेटेड, इट इज नॉट मेकिंग एनी फॉल्स क्लेम, जो भी एडवर्टीजमेंट में क्लेम कर रही है वो पूरा हो रहा है, अपने टैक्सेस गवर्नमेंट को टाइमली पे कर रही है और एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट नहीं कर रही। इसका मतलब इट इज बिहेविंग इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। बेटे जिस तरह से हम सिटीजन हैं, हम सोसाइटी का पार्ट हैं, हम छोटे होते अपने क्लासेस में अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। सो बेटे इसी तरह से एक बिजनेस फर्म भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है। इट हैज टू earn money in a way which fulfill the expectations of the society. ठीक है, it should do business, it should earn money in ways which fulfill the expectations of the society. Hence the concept social responsibility. ठीक है, so social responsibility refers to the obligation of the business firm to perform those actions and take those decisions which relate to the values, interest and objectives of the society. Right? Now, social responsibility is a broader concept than legal responsibility. You can have a question on that. Is social responsibility the same thing as legal responsibility? First of all, what is legal responsibility? Legal responsibility का मतलब क्या है? You should fulfill your legal responsibility. A firm should fulfill its legal responsibility. What does it mean? But it simply means it should comply with the laws. जो कानून बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जो लॉस बनाए हैं, आपको उन लॉस को मानना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग उनको you have to comply with that. Comply with means you have to follow those laws. This is legal responsibility. But social responsibility has a wider concept than merely legal responsibility. सिर्फ कानून को मान के चलना, जो लॉ कहता है कि आपने ऐसा नहीं करना उसको फॉलो कर लिया, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा फर्म को it should recognize its social obligations. It has certain social obligations also. कानून कभी ये नहीं कह सकता कि एक फर्म अगर इतने प्रॉफिट्स बना रहा है तो उसको गरीब बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर करनी चाहिए, उसको कोविड अफेक्टेड विक्टिम्स को घर बना के देने चाहिए। कह सकता लॉ? लॉ कंपल्सरी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एक फर्म की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इफ इट इज अर्निंग प्रॉफिट्स, it should recognize its obligations towards the society. Clear? So this basically social obligation involves a voluntary action on the part of the business. Legal आपको मानना ही पड़ेगा, आप नहीं भी चाहते, even then you have to pay the taxes, right? आप नहीं भी चाहते तो भी आपको एम्प्लॉइज को उतनी सैलरी देनी पड़ेगी जितनी लॉ कह रहा है, मिनिमम वेजेस देनी पड़ेगी। बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बियॉन्ड दैट, इट इन्वॉल्व्स ए वॉलंटरी एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ फर्म। अब कोविड में कितनी बड़ी फर्म्स ने, रिलायंस ने या बाकी फर्म्स ने कितने कितने पैसे डोनेट किए ना डोनेट? क्या उनको कोई लॉ कह रहा है, कानून कोई बनाया हुआ है जो कहता है कि नहीं जी आपको इतने पैसे इनको देने पड़ेंगे? नो, ऑन देयर ओन voluntarily they contributed this much. This is social obligation. Is it clear? So concept of social responsibility, is it clear to all? Any other child? Any doubt? Okay, so let's move ahead. But if you are having any doubt, you can raise hand. I will be unmuting you. चलो नेक्स्ट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ बेटे देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट बेसिकली। टू स्कूल्स ऑफ थॉट मींस डिफरेंट ओपिनियन है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई एक बिजनेस फर्म को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए, इट इज लाइक मस्ट ऑन द पार्ट ऑफ एनी बिजनेस फर्म टू फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. But there is another school of thought, another category of people who think that no, a business firm is not required to fulfill its social responsibilities. Why should business firm fulfill its responsibilities? ठीक है. So जब भी बेटे दो स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं तो हम कैसे डिसाइड करते हैं विच स्कूल ऑफ थॉट इज करेक्ट? हम उन दोनों के आर्गुमेंट सुनेंगे, ठीक है, और दे विल बी पुटिंग फॉरवर्ड देयर केस. डिबेट जैसे होता है, अगर आप किसी के फेवर में हो या किसी चीज के अगेंस्ट हो, आपको अपना पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, ठीक है. सिमिलरली बेटे there are certain people who have given arguments in favor of social responsibilities. So let us put a case for, whenever we say we are putting a case for any concept, say case for social responsibility, which means we are giving arguments in favor of that concept. So in this case, social responsibility. So let us put forward the first argument given by the people, that is justification for existence and growth ओके बेटे. बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है? बिजनेस एग्जिस्ट करता है फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. What does a business firm do? Daman, be attentive. A business, why does a business exist? Business exists for providing goods and services for the satisfaction of human wants. So even though profit motive is an important justification, जो profit motive है वो एक justification है. बिजनेस एक्टिविटी हम क्यों अंडरटेक करते हैं? हमारा मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग. लेकिन अगर हम डीपली सोचें तो ये प्रॉफिट आया कहां से? हमने लोगों को सर्व किया. वी हैव प्रोवाइडेड द गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल विच हैव सेटिस्फाइड देयर वांट्स. आज आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए वाईफाई की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है या मोबाइल की जरूरत है. लेट अस सपोज मोबाइल फोन्स शट डाउन कर देती है अपनी प्रोडक्शन कि भाई हम तो नहीं बना रहे, तो क्या आपकी वांट सेटिस्फाई होगी? आप मोबाइल नहीं खरीद पाओगे या वाईफाई कनेक्शन नहीं ले पाओगे. योर वांट विल नॉट बी सेटिस्फाइड. सो बेसिकली अगर इसको हम ऐसे देखें तो बिजनेस फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न करता है, बट this profit is basically an outcome of service to the people. ये आपको वो सर्विस दे रहे हैं, उसी का ये रिजल्ट है, ठीक है. सो इसका मतलब अगर हम सोसाइटी को कंटिन्यूसली सर्व करते जाएंगे तभी हमारी जो प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, ठीक है. सो विच मीन्स यू आर एग्जिस्टिंग, यू आर ग्रोइंग. आपकी एग्जिस्टेंस, आपका सर्वाइवल और आपकी ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी को सर्व करने के ऊपर. सो दैट्स व्हाई, बिकॉज यू आर सर्विंग द सोसाइटी एंड प्रॉफिट इज द आउटकम ऑफ, रिजल्ट ऑफ सर्विस टू द सोसाइटी. तो अगर सोसाइटी नहीं होगी बेटे तो आप क्या करोगे? आप एग्जिस्ट करोगे. So because सोसाइटी को आप सर्व कर रहे हो, सोसाइटी को सर्व करके ही आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप एग्जिस्ट कर रहे हो. आप जब प्रॉफिट नहीं होगा आप सर्वाइव ही नहीं करोगे. करोगे?
बिना प्रॉफिट के बिजनेस एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। प्रॉफिट कहां से आ रहा है? सोसाइटी को सर्व करके आ रहा है. सो विच मीन्स प्रॉफिट इज द आउटकम ऑफ service to society. So basically your existence, your growth depends upon the service to the society. So you should fulfill your responsibility towards society. So social responsibility आपको fulfill करनी चाहिए. ठीक है? अगर आप खराब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फुलफिल करोगे, आप एग्जिस्ट ही नहीं करोगे, आप ग्रो ही नहीं करोगे. ठीक है? So this is first, argument given for social responsibility. Let us discuss the second argument. Long-term interest of the firm. बेटे बिजनेस जब भी हम खोलते हैं ना, हमें एक परसेप्टिव लॉन्ग रन परस्पेक्टिव से खोलते हैं. हम जब भी बिजनेस सेटअप करने का एक आइडिया हमारे माइंड में आता है तो हम हमेशा उसको लॉन्ग रन में देखते हैं. हम ग्रोथ देखते हैं कि चलो पहले इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, फिर धीरे धीरे हमारा ग्राफ ऊपर होता जाएगा, हम ग्रो करते जाएंगे, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, हम एक्सपैंड करेंगे. हर एक कोई ऐसा सोचता है. ठीक है? लेकिन एक फर्म की इमेज बेटे तभी डेवलप होगी या लॉन्ग रन में वो प्रॉफिट्स अपने तभी मैक्सिमाइज कर पाएगा इफ इट हैज हिज हाईएस्ट गोल एज सर्विस टू दी सोसाइटी. अगर आप सोसाइटी के साथ गलत काम करके प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दोगे तो वो शॉर्ट रन में ही लिमिटेड रहेगा. लॉन्ग रन में धीरे धीरे जब लोगों को पता चलने लग जाएगा, आपकी इमेज को सेटबैक लगेगा, आपके प्रॉफिट्स को सेटबैक लगेगा, आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे. सो इफ यू वांट टू बिल्ड अप अ गुड इमेज इन द लॉन्ग टर्म, आप एक अच्छी इमेज देखो, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए एक अच्छी इमेज होनी चाहिए, आपको अच्छे प्रॉफिट्स होने चाहिए, तभी आप लॉन्ग रन में सर्वाइव करोगे. सो it is in the benefit of long term interest of the firm if you behave in a socially responsible manner. ठीक है? जब सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो कंज्यूमर्स हो आपके, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, जब वो फील करते हैं कि बिजनेस हमारे इंटरेस्ट्स को सर्व नहीं कर रहा, दे हैव एनी इनहिबिशन. आप एज ए कंज्यूमर आपने मोबाइल फोन लिया, किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड का लिया, ठीक है, अगली बारी आपने देखा वो मोबाइल 2-3 महीने बाद खराब होने लग गया. आप गए कस्टमर केयर सेंटर पे गए, उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसी आपको 2 दिन बाद बुलाया, ऐसी दे दी. सो जब आपका एक्सपीरियंस बेटे इतना बिटर जाएगा तो एज ए कंज्यूमर क्या उस कंपनी का प्रोडक्ट दोबारा से खरीदोगे? एक होती है ब्रांड लॉयल्टी. ब्रांड लॉयल्टी मतलब जब आप सेकंड टाइम परचेज करते हो सेम ब्रांड की खरीदो. आपने एक बारी नाइकी के शूज दिए, आपको इतने कंफर्टेबल लगे, अगली बारी आपको जरूरत थी, आपने कहा मैं नाइकी के लूंगा, दीज वर वेरी कंफर्टेबल. दिस इज ब्रांड लॉयल्टी. ठीक है? सो ब्रांड लॉयल्टी आप अगर एक्सपेक्ट करते हो तो यू हैव टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. दैट इज यू हैव टू बी socially responsible. That is for the long term interest of the firm and beneficial for earning maximum profits in the long run. ठीक है? सो ये फर्म के अपने इंटरेस्ट में है बेटे कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करे, क्योंकि इससे उसकी पब्लिक इमेज जो है वो इंप्रूव होती है. और आज के टाइम में एक अच्छी पब्लिक इमेज बनाना बहुत ही जरूरी है. Next bete, avoidance of government regulation. So from the viewpoint of business, consider yourself as a businessman, you are running a firm. Would you
लाइक गवर्नमेंट रेगुलेशंस, आपको गवर्नमेंट की रेगुलेशंस अच्छी लगेंगी? एज ए स्टूडेंट क्या आपको टीचर की रेगुलेशंस, ऐसे करो ऐसे बैठो, अच्छी लगती हैं? नहीं लगती। ठीक है, सो सिमिलरली एक बिजनेस फर्म के लिए गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है वो अनडिजायरेबल है, क्योंकि वो बिजनेस फर्म की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। यस, दे रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ द बिजनेस फर्म. So beta, if you want to avoid the problem of government regulations, you should assume your social responsibilities voluntarily. उससे क्या होगा, गवर्नमेंट नए लॉज नहीं बनाएगी। अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी और गवर्नमेंट को पता चल गया कि आपने ये गड़बड़ की है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इस गड़बड़ को फ्यूचर में रोकने के लिए नया लॉ पास कर देगी। लेट अस सपोज एक स्टूडेंट जो है एक गेट से निकल गया, ठीक है, छुट्टी से पहले चला गया, उस गेट पे कोई गार्ड नहीं होता था। सो व्हेन वी रियलाइज्ड स्टूडेंट हैज परफॉर्म सच एन एक्शन, हम क्या करेंगे? हम वहां पर भी गार्ड खड़ा कर देंगे, या वहां पर हम आपकी एंट्री रोक देंगे, वहां पे जाना रोक देंगे। उससे आपकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होगी, आपको वो पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपने हमें मजबूर किया ये नया लॉ पास करने के लिए। अगर आप वॉलंटरली, अगर वो स्टूडेंट नहीं भागता, वॉलंटरली अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता, तो हमें नया कानून पास ना करना। ठीक है, सो सेम हैपेंस। Every firm wants to avoid government regulations because they restrict the freedom of business enterprise. So if the businessmen voluntarily fulfill the social responsibility, it reduces the need for the new laws to be passed by the government. All right. So next is all right. So next argument which is given, why a business firm should fulfill its social responsibility, that is the availability of resources with the business. जो बिजनेस है बेटे वो हमारी सोसाइटी के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लेके बैठा हुआ है। आप देखो एक बिजनेसमैन, ही हैज लॉट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जस्ट थिंक ऑफ द मनी कैपिटल इन इंडिया, एंड जस्ट इमेजिन क्या ये कैपिटल का ज्यादा पार्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर में होगा या इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगा? इन्वेस्टेड इंडस्ट्रीज में, यानी फर्म्स, बिजनेसमैन के पास। ठीक है, सिमिलरली मैनेजरियल टैलेंट, जितनी भी हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल है हमारी, पूल ऑफ स्किल्ड पीपल इंक्लूडिंग मैनेजर्स, सीएस, इंजीनियर्स, ये किसके पास है ज्यादा? बिजनेस फर्म्स के पास है। सो नो डिनाइंग द फैक्ट दैट बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैव अ लार्जेस्ट चंक ऑफ फाइनेंशियल and managerial, human resources, कह लो, human resources, sorry, be it engineers, be it managers, be it lawyers or chartered accountants, ये business firm के पास है। So these resources can be effectively used to solve the problems which are being faced by the society. आज हमारी सोसाइटी में कितनी प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, और ये रिसोर्सेज सबसे ज्यादा किसके पास हैं? बिजनेस फर्म्स के पास है। सो दे कैन हेल्प अस सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। आई जस्ट इन द प्रीवियस पॉइंट आई गेव यू एन एग्जांपल कि इन द डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ लॉकडाउन imposed by the government of India during the COVID pandemic, many sufferers like labor class, they were suffering a lot, right? So many business firms helped them to migrate to their cities, villages, and they gave them food, they gave them money,
so they help them with their financial resources. किसने हेल्प की? बिजनेस ने हेल्प की. अगर बिजनेस उस टाइम पे विथड्रॉ कर लेता अपना सपोर्ट, तो हमारी सोसाइटी को बहुत बड़ा धक्का लगता. Yes, so which means that there is an availability of huge resources with the business firm. So इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट जाता है कि भी अगर सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कौन सॉल्व कर सकता है? उसको बिजनेस इंस्टीट्यूशंस सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. So next बेटे is converting problems into opportunities, because businessmen, you know, they have this glorious history, आप कह सकते हो कि they convert risky situations into profitable deals. बिजनेसमैन की खासियत है बेटे, एक जो एंटरप्रेन्योर है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जिसमें बिजनेस स्किल है, एक्यूमेन है, वो क्या करता है? वो रिस्क को प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है. सो ऐसा माना जाता है कि अगर बेटे उसमें ये एक ऐसा टैलेंट है कि वो रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है, तो ही इज द ओनली वन हु कैन इफेक्टिवली सॉल्व आवर सोशल प्रॉब्लम्स बाय एक्सेप्टिंग दिस एज ए चैलेंज. अगर वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी एज ए चैलेंज लेता है, he can effectively solve these, right? Then better environment for doing business. अगर बिजनेस हम चाहते हैं एक अच्छे मैनर में ऑपरेट होता रहे, कोई हमारे ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो. कई बार ऐसे होता है, हमने बिजनेस खोला, एक इंस्पेक्टर आ गया, फिर दूसरा इंस्पेक्टर आ गया, तीसरा इंस्पेक्टर हो गया, हमारा काम ही नहीं चल रहा अच्छे से, हम उन इंस्पेक्टर्स के साथ डील करने में बिजी रह रहे हैं. ठीक है. क्या आप चाहते हो ऐसा एनवायरनमेंट? आप एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहते हो जहाँ पे यू नो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, जहाँ पे हमें सक्सेस मिल सके. ठीक है. तो अगर आप ऐसी सिचुएशन चाहते हो बेटे, यू हैव टू एक्ट इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर. So these are the arguments given in favor of social responsibility. Tomorrow we will discuss the arguments against social responsibility. Any child having any doubt, you can ask.